ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤਹੀਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਕਸਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਸੋ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕੁਝ रिप्रेजेंटेटिव ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि उस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ जानकारी ਦੀ? जी देखिए, पहली बात तो मैं डिफरेंट सिटीज़ में जा रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है देश प्रदेश का जी, क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हमें डिफरेंट स्टेट्स में लोगों को अपनी जो विचार हैं, जो अपने आइडियाज़ हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, वो बताने का मौका मिल रहा है। दिल्ली हम गए, मोर देन 300 स्टूडेंट आए, पंजाब में आए, चंडीगढ़ में आए, हरियाणा में गए, हर जगह स्टूडेंट्स हमें मतलब जैसे वेट कर रहे थे हमारा। स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने इतना लाइक किया, हद से ज़्यादा। देहरादून की बात करूं तो देहरादून भी बहुत बड़ा हब है, और वहाँ पे एक अच्छा चंगा कंसल्टेंट नहीं है, स्टूडेंट्स को कमी है। अभी तक 350 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिन्होंने हमारे फेयर में आना है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम जा रहे हैं। हर एक बच्चा फेसबुक पे, इवन कि जिससे बात होती है स्टूडेंट के पेरेंट्स से, वो बोलते हैं कि यार हमारे शहर में भी आओ, आके यहाँ भी गाइडेंस दो। तो अच्छा लगता है। हम जाएंगे 4 घंटे की ट्रैवल करके अपनी कारों से, ठीक है, और स्टूडेंट से हम मिलेंगे, स्टूडेंट्स को ऑन स्पॉट हम असेसमेंट करके एडमिशन भी देंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वो स्टूडेंट हमें लाइक कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं। इवन के सर साउथ के लोग भी फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आपका अहमदाबाद में नहीं है, केरला में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, एंड कोलकाता में नहीं है, रेस्ट पार्ट में हमारे ऑफिस नहीं है। तो ऑफिस जितने से जल्दी हो सकता खोले, क्योंकि हर एक बंदे को एक जेन्युइनिटी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को डायरेक्ट टाइप्स वाले एजेंट चाहिए, ताकि हम स्टूडेंट्स को मतलब ताकि उनको एक अच्छी सर्विसेज मिल सके। तो सबसे बड़ा योगदान आपका है, तो तहे दिल से पहले मैं आपका धन्यवाद करता। नहीं जी नहीं, शुक्रिया। ये दर्शकों का मंच है, दर्शकों के सवाल होंगे ने, दर्शकों ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ, 25 ਲੱਖ, 30 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੈ, 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਯੂਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 25-25 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ रहेगा। सर एक 27 तारीख को मैं वेन्यू जरूर बता दूँ जी। देहरादून में हम आ रहे हैं जी 27 तारीख को, दिन शनिवार है, एंड होटल सैफरोन लीफ है, होटल सैफरोन लीफ, जो कि GMS रोड पे पड़ता है, GMS रोड पे होटल सैफरोन लीफ। 11 बजे से लेके 4 बजे तक मैं खुद अवेलेबल होऊंगा, मेरी डेडिकेट टीम होगी, ठीक है। बस कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। तो मैं आप सभी को इन्वाइट करना चाहूँगा, देहरादून वासियों को, नियर बाई जो सिटीज़ हैं उन सभी को, कि भाई जिसका भी देहरादून नज़दीक पड़ता है आप आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। 11 बजे से 4 बजे तक हमारी पूरी डेडिकेट टीम वहाँ पे होगी। आपने कनाडा जाना है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपने न्यूजीलैंड जाना है, आपने यूरोप जाना है, UK जाना है, US जाना है, साउथ कोरिया जाना है, या IELTS PT और सेल्फिप को लेके कोई डाउट है, 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज आपको चाहिए, तो हर एक चीज़ आपको मिलेगी। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, आपका क्या नाम है, वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, आप सोच रहे हैं अभी IELTS करने की, आप सोच रहे हैं विदेश में जाने की, तो कम टू दैट प्लेस।
जिसका जो कि होटल सैफरन रीफ है, 11 बजे से 4 बजे तक GMS रोड पे है। मैं खुद वहाँ पे अवेलेबल होऊंगा और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जेन्युइनिटी के साथ, ईमानदारी के साथ आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकें और आपके ऑन स्पॉट असेसमेंट करा के एडमिशन करा सकें और आपका विदेश जाने का जो भी आपका टारगेट है उसको हम कंप्लीट कर सकें। जी। सो प्रदीप जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ देहरादून हैगा जी, उस तो बाद तुसी मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। इसके बाद हमारे इन हाउस सेमिनार है अपना 6 तारीख को, जो एक वुसोंग यूनिवर्सिटी आ रही साउथ कोरिया की जी, 27 तारीख को तो हमारे देहरादून। उसके बाद 4 जो मई है हम नवा शहर आ रहे हैं, द ग्रांड होटल एंड रिजोर्ट, नवा शहर में पंजाब में द ग्रांड होटल एंड रिजोर्ट आ रहे हैं, जिसमें अगेन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप की आपको काउंसलिंग दी जाएगी, ऑन स्पॉट असेसमेंट की जाएगी। इसके बाद हमारे इन हाउस सेमिनार्स हो रहे हैं 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को। 6 मई चंडीगढ़ है, वुसोंग यूनिवर्सिटी आ रही है ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए, साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी है ये। 7 तारीख को यही यूनिवर्सिटी जलंधर जा रही है, जलंधर मेरा ऑफिस है गड़ा रोड पे, 10 बजे से 2 बजे तक वहाँ पे होंगे। 8 मई को वुसोंग यूनिवर्सिटी ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए अम्बाला ऑफिस मारी है, 10 बजे से 2 बजे तक। 6, 7, 8 इन 3 दिन वुसोंग यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स मेरे ऑफिस में होंगे ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए। इसके बाद जी 11 तारीख को हम आ रहे हैं रुद्रपुर में होटल रुद्रा कॉन्टिनेंटल है, वहाँ पे हमारे 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे होंगे। इसके बाद 18 तारीख दिन शनिवार है जी, गंगानगर आ रहे हैं, ये आपको वेरी सुन मैं आपको वेन्यू बता दूंगा। और 25 तारीख को खन्ना आ रहे हैं, द डाउन टाउन अपना रेस्टोरेंट है खन्ना में, द डाउन टाउन रेस्टोरेंट जो कि GT रोड पे पड़ता है। तो ये हमारे सेमिनार्स हैं। इसके बाद 1 जून को हमने जर्मनी का सेमिनार रखा है, ऑन स्पॉट एडमिशन है, जिसमें 15 से 20 यूनिवर्सिटी आएंगी जर्मनी की। चंडीगढ़ में हमने ये रखा है, जिसमें डिफरेंट अप्लाइड साइंस की यूनिवर्सिटीज़ होंगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्लस कॉलेज होंगे। तो जर्मनी जो बच्चा जाना चाहता है, यूरोप जो जाना चाहता है, तो होटल अरोमा में 1 जून को 20 से 25 डेलीगेट से आप मिल सकते हैं एंड ऑन स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं जी। सो प्रदीप जी, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, साउथ कोरिया ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? साउथ कोरिया का हर एक सेमिनार्स में बताया जाएगा, अच्छा, लेकिन डेलीगेट आ रहा है तो वो कह रहा है जी मैंने आपके ऑफिस विजिट करना है, इसलिए हम 6, 7, 8 तारीख को वो हमारे ऑफिस मतलब ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ साउथ कोरिया की बात की जाएगी और शामिल है उसमें। अच्छा, क्यों ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾउथ कोरिया सुइटेबल ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? देखिए जी, एक तो अर्निंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, जो बच्चा जाता है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए बच्चा अर्न कर लेता है ड्यूरिंग स्टडी। दूसरी बात, इनके स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 साल का स्टेप बैक ऑप्शन है, मतलब बच्चा PR ले सकता है। एक वहाँ की गवर्नमेंट ने अपना अगर कोई बच्चा अपना बिजनेस रन करता है स्टडी कंप्लीट करने के बाद, तो वो अपना बिजनेस रन करके भी PR ले सकता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन। साउथ कोरिया बहुत अच्छी कंट्री है, जो बच्चा वहाँ जा रहा है आप उनका फीडबैक ले सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे सेटल है, बट बशर्ते कि बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। ड्यूरिंग स्टडी 20 आवर्स वर्क राइट है, और जो बच्ची हैं 1-1.5 लाख रुपये बच्चा अर्न कर लेता है। और इसके अलावा स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने बैचलर की या मास्टर्स की 1 ईयर का स्टे बैक ऑप्शन है। प्लस में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भी स्टार्टअप बिजनेस के नाम से वहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चला रखी है, स्टार्टअप बिजनेस। तो आप अपना बिजनेस आप गवर्नमेंट को दिखाएं, अपना प्रपोजल दिखाएं, तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको हेल्प भी करे और उस बेस पे भी आप PR ले सकते हैं। तो बढ़िया ऑप्शन किस तरह ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ US ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, UK ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌजिक ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, किस बच्चे लिए सुइटेबल है? देखिए, साउथ कोरिया जिस बच्चे ने इसको सर्च कर रखा है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी हर एक वो बच्चा जो कनाडा जाना चाहता है वो भी साउथ कोरिया जा सकता है, बट साउथ कोरिया क्यों जाए वो मैं आपको बता चुका हूँ। सेकेंडली, आपका 1 साल 2 साल 3 साल का बैक है, डजेंट मैटर। आपके पास फंड्स कम है, डजेंट मैटर। आपकी फीस तकरीबन 7-8 लाख रुपये यहाँ फीस आती है, वो तो आपको पे करनी पड़ेगी। फंड्स आप करंट के दिखा सकते हो, और आपके बैंड अगर 5.5 बैंड है, 6 बैंड है, तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है। विदाउट आइल्स भी आते हो, लेकिन अगर उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो भी हम आपको प्रमोट कर सकते हैं और आपका वीज़ा लगवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे के लिए जो साउथ कोरिया जाना चाहता है, जो लगता है भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहता, वो साउथ कोरिया जा सकता है। जो बच्चा गया वो वेल सेटल्ड है वहाँ। प्रदीप जी, मई, जून, जुलाई 3 ਅਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਆਉਣੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣੇ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਹਲੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, जून ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, जनवरी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ जी जी।
ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇक्स ਲੈ जी ਕੇ देखिए, पहले लेट्स स्टार्ट विद कनाडा। कनाडा में मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस की सीटें फिल हो चुकी है सितंबर की, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ कॉलेज जो अभी भी सितंबर की दे रहे हैं। जैसे कैम्ब्रियन कॉलेज की कल मेल आई हमें, ठीक है, कॉनेस्टोगा की मेल आई, और काफ़ी सीबी यूनिवर्सिटी की मेल आई है, ठीक है। रेस्ट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, नीपी सिंह यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे माउंट सेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अभी भी सितंबर इनटेक के लिए सीटें हैं, पहली बात। इसके बाद आपका जैन इनटेक है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, जो 4 महीने में आप पूछ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जुलाई इनटेक है, जुलाई इनटेक में आप इजीली जा सकते हैं। इसके बाद इनका अक्टूबर नवंबर इनटेक निकलता है। फिर चलती है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का आप जून जुलाई का इनटेक है, और प्राइवेट कॉलेज के पास हर एक दो महीने में, 1 महीने में हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप में सितंबर इनटेक मोस्टली हर एक यूनिवर्सिटीज कॉलेज में अवेलेबल है। साउथ कोरिया में अवेलेबल है, यूके में अवेलेबल है। तो ये सारे कंट्रीज हैं जिसमें बच्चा जा सकता है इस साल, मतलब टिल सितंबर हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में सीटें अवेलेबल है। कनाडा की बात कर रहे हो, जैसे कि भाई सितंबर में ठीक है, एक कॉलेज की इस पास सीटें फिल है, तो रेस्ट कॉलेज हैं। आपका टारगेट कनाडा होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर कोई प्रोविंस या पर्टिकुलर कोई कॉलेज। कोर्स अच्छा हो जो आपके करियर से मैच करता हो, आपकी एजुकेशन से मैच करता हो, तो कनाडा तो कोई भी प्रोविंस हो, कोई भी कॉलेज हो, सब फैंटास्टिक। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ यूके ਦੀ कोई अपडेट, कुछ क्लैरिटी आई है कि ਕੀ ਹੋਏਗਾ फ्यूचर? देखिए सर, विदाउट आइल्स जा सकता है बच्चा, वही 60% 65% अगर आपकी लास्ट 12th में है इंग्लिश में। इसके अलावा इनका यही है कि इनको 6 महीने का ये वीज़ा देंगे, मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो 6 महीने का स्टे बैक ऑप्शन है। गवर्नमेंट को पे प्रेशर है, मे बी वो बढ़ा सकते हैं, वो अगर आगे बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर होगा। बट अभी तक जो न्यूज़ है वो 6 मंथ तक की है। जी प्रदीप जी, जिमें ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जी, और इसमें हम यूरोप, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए की भी देंगे। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ जा रहे हैं, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ जा रहे हैं, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? स्लो वीज़ा आ रहा है या ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ हो रहा है? 2 रीजन हैं जी। पहला, बच्चे के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं जिसके पास फंड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, फंड्स अवेलेबल हैं तो फिर उनके पास बैंड स्कोर अच्छा नहीं है, तो ये, और यहाँ पे इंटरव्यू होता है, मोस्टली बच्चों के इंटरव्यूज लेती है एम्बेसी, हाई कमीशन इंटरव्यू लेती है, और जो बच्चा इंटरव्यू में फेल होता है तो उसका रिजेक्शन आएगा ही आएगा। सेकेंडली क्या है कि उन्होंने पीछे अपनी मैन पावर थोड़ी सी उनकी कम थी उनके पास, ठीक है। अब एकदम रुझान हुआ कि बच्चों की फाइलें डलनी शुरू हो गई हैं, तो अभी भी एक महीना 2 महीना हाई कमीशन ले रही है। तो प्रोसेस उनका इंटरनल प्रोसेस है, वो वेरीफाई डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उन चीज़ों में टाइम लग रहा है। बट जैसे जैसे एप्लीकेशन ज़्यादा बढ़ेंगी, हाई कमीशन को ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और प्रोसेस हो सकता है लीनियट हो जाए और थोड़ा सा फास्ट हो जाए। जी प्रदीप जी, 2 मिनट ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ 6 ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ 5 ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? सर, इसके पीछे 2-3 रीज़न। एक तो स्टूडेंट खुद जिम्मेदार है, सेकेंडली एक इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। रणवीर सर, हम 10th में थे, 12th में थे, ग्रेजुएशन की, ठीक है। हमें एक टीचर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, उसके पास अच्छी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज है। एक टीचर हमें अच्छा ही नहीं लगता था क्योंकि उसकी क्लास बोरिंग होती थी, तो वहाँ नींद आती थी, तो बच्चा उस क्लास को बंक करते थे, हम भी करते थे। वही आइल्स इंस्टीट्यूट्स में होता है, टीचर का इंटरेक्टिव होना, मतलब एक अच्छे लेवल पे पढ़ाना, स्टूडेंट के दिल को बात छुए वो चीज़ होना, इन्वायरमेंट अच्छा होना, बच्चों को एक लास्ट जो बेंच पे बच्चा बैठा है उस तक अपनी बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना। आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, जितने बड़े बड़े नाम बैठे हैं ना, वो भी 6 बैंड वाले हमारे जैसे इंस्टीट्यूट से पास हो गए या उनके इंस्टीट्यूट से पास हो गए, जो आए टीचर्स, मतलब जो बच्चे हैं जिनका वीज़ा नहीं लगा, उनको वे फैकल्टी बना देते हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं बच्चा स्कोर नहीं ले पाता, ये एक रीज़न है। सेकेंडली, स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, मॉक टेस्ट को बहुत फनी वे में लेते हैं बच्चे, ठीक है, तो वहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। वेस्टर्न ओवरसीज टाइम टू टाइम आइल्स रियलिटी टेस्ट कराता है। सर, अभी हमने जलंधर में कराया, होटल किंग्स में, सेम इन्वायरमेंट जो IDP ब्रिटिश काउंसिल लेता है, मतलब हर एक बच्चा कांप रहा था वहां जाके अंदर बैठ के कि यार इतना रियल इन्वायरमेंट। जब उनका बच्चों का फीडबैक लिया ना, तो बच्चे बोलते हैं कि तो हम तो डरे हुए थे कि मतलब ये चीज़ें होंगी, और हमें फ़ायदा हुआ थैंक्स टू वेस्टर्न ओवरसीज।
फायदा हमें इस चीज का हुआ है कि आप लोगों ने ये टेस्ट इन्वायरमेंट, रियल इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया, और उस चीज का फायदा ये होगा कि जब फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो वो इस चीज से निकल चुके होंगे। अब हम आगे आ रहे हैं जी 8 जून को बठिंडा में, तो वेरी सुन वेन्यू बता दूंगा, तो उसमें जरूर आइए। हमने 500 रुपीज एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, आप आइए वहां पे, इन्वायरमेंट देखिए कैसा होता है, फाइनल एग्जाम में किस तरीके से पेपर लिया जाता है, और उस चीज़ का आपको फायदा होगा कि आप जिस बैंड स्कोर पे डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप वो जो फोबिया है ना, जो डर है वो निकल चुका होगा। डर एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, ठीक है, डर के कारण बच्चों का स्कोर नहीं आता, परफॉर्म नहीं कर पाता, तो आपको डायरेक्ट एक अच्छा इन्वायरमेंट हम देंगे। वेस्टर्न ओवरसीज ने ये बीड़ा उठाया है, इससे हमें कोई कमाई नहीं होती, बल्कि हम लॉस में होते हैं, फिर भी हम बच्चों के लिए करते हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य बनता है। बच्चे कल ने बताएंगे इस चीज को कि मैंने वेस्टर्न ओवरसीज का IELTS रियलिटी टेस्ट लगाया था, मेरे 7 बैंड आए, और आप भी जाओ वहां पे वेस्टर्न ओवरसीज में जाओ और IELTS रियलिटी टेस्ट देके आओ। तो 8 जून आप नोट कर लीजिए, मेरी वेबसाइट्स पे और मेरे फेसबुक पेज पे आप वॉच करते रहिए। वेरी सुन हम आपको डिक्लेयर कर देंगे वेन्यू क्या होगा। प्रदीप जी ਹੋਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ पॉजिटिव आएगा, या लेट होने के कारण की ने? देखिए, डिपेंड करता है कि रीजंस क्या हैं, ठीक है। मे भी उसके पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसका जो पासपोर्ट जो एक्सपायर हो रहा है वो उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले, मान लो बैचलर वो 4 ईयर की है और उसका पासपोर्ट पहले एक्सपायर हो रहा हो, ये एक रीज़न हो सकता है। मे बी उनको वेरिफिकेशंस करनी हो कि भाई बच्चे ने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, मे बी वो डाइसी हो कि इसको वीज़ा देना दे, मे बी उसके कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा हो, ये एक रीज़न होता है। दूसरा हो सकता है कि वीज़ा ऑफिसर जो साइन किया हुआ है वो छुट्टी पे चला गया हो, ठीक है। और इसके अलावा मेरे करियर में भी एक बच्चे का ऐसा हुआ था, और अपना फगवाड़ा साइड का एक बच्चा था, उसका 9 मंथ में वीज़ा था, 9 मंथ में, मेरे एक एसोसिएट का था, वीज़ा मैंने लगवाया था। तो हमने हाई कमीशन में मेल करी तो वो बोलते जी अंडर प्रोसेस है। फिर हमने बर्लिन मेल करी, ठीक है, तो तब जाके उस बच्चे का वीज़ा निकला। तो ये टाइम लगता है, तो एक बार मुझे उसकी प्रोफाइल और प्रोसेस आप बता दीजिए, एक बार स्टूडेंट से मेरी बात करा दीजिए, मैं बता दूंगा कि पर्टिकुलर इसको कहाँ पे मेल करनी है, पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट में मेल करनी है कि इसका वीज़ा निकले जी, जो भी डिसीजन है, वीज़ा या रिफ्यूज जो भी है डिसीजन आए। प्रदीप जी, मैं ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। फिर कहते नहीं 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ च जर्मनी चलो, ब्लॉक अकाउंट की गल नहीं करता कोई। सो की कारण है सही तरीके नाल जर्मन नूं प्रेजेंट नहीं किया जाता? देखिए सर, ये तो गलत बात है कि कोई ब्लॉक अकाउंट की कोई बात नहीं करता। तो देखिए, पहली बात तो मैं बताऊंगा, जो आप पे जैसे कनाडा चलता है वैसे जर्मनी चलता है। यहाँ पे 8820 का आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, कोटक महिंद्रा या डच बैंक में। ये पैसे आपके सबमिट हो जाएंगे, आपके नाम से अकाउंट होगा, उसमें अपना डिपॉजिट हो जाएंगे। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको 720 या 735 यूरो पर मंथ मिलते रहेंगे। ये 7 लाख की तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, ये बट आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। साथ साथ में 8,000 यूरो से 12-13,000 यूरो तक साल की फीस है अगर आप पेड एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। उसमें से आपको 6,000 या 3,000 यूरो पहले देने हैं, वीज़ा लगने के बाद रेस्ट पेमेंट देनी है। तो ये तकरीबन 14-15 लाख रुपए का एक्सपेंसिस है। दूसरा जो आपने बोला कि भाई फ्री एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, फ्री एजुकेशन कुछ नहीं होती। फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि उसको पहले जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद उसको एक फाउंडेशन कोर्स भी करना है, उसके बाद 180 यूनिवर्सिटीज उसको फ्री एजुकेशन दे सकती है। बट आज की डेट में फ्री एजुकेशन के लिए जो बच्चा जा रहा है, हाई कमीशन उसको आज की डेट में डेट्स नहीं दे रही है, डेट नहीं मिल रही है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि पेड एजुकेशन वाले में जाओ, क्योंकि यहाँ पे 2 साल तो आपको वैसे लग जाएंगे। 1 साल फ्री एजुकेशन के लिए जो लैंग्वेज कोर्स की, फिर उसके अलावा उसका जो फाउंडेशन कोर्स किया, 2 साल तो यही हो गए। जिस बच्चे ने मास्टर्स करनी है 2 साल में, तो उसकी मास्टर्स वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। या जो बच्चा 12th पास है, बैचलर्स के लिए जा रहा है, तो 2 ईयर तो उसके वैसे ही हो गए, 2 ईयर उसने और पढ़ना है। तो आई विल सजेस्ट कि आज की डेट में पेड एजुकेशन जो इंग्लिश में एजुकेशन है वो उसकी डेट्स अवेलेबल हैं, आप उसके लिए अप्लाई करें, आपका वीज़ा लगेगा। साथ साथ में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे एक सब्जेक्ट कंटिन्यूसली साथ चलता है। मान लो मैं BBA करने गया तो मेरी एजुकेशन इंग्लिश में, साथ साथ में मुझे एक जर्मन लैंग्वेज का
एक सब्जेक्ट्स और पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं जो वहाँ की लोकल मार्केट है उसमें को कम्पीट कर सकूँ। स्पॉस केस भी आउणगे ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਪੌਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ? देखिए स्पाउस ऑस्ट्रेलिया केस ਲਈ आपका खासकर। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, आपका न्यूजीलैंड हो सकता है, स्वीडन डेनमार्क हो सकता है, दीज आर द कंट्री, या फिर यूके का मास्टर्स में हो सकता है। आप प्लीज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइए, प्लस में आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो लेके आइए, पैन कार्ड, ITRs, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, दादी क्या करती हैं, नाना नानी हैं तो वो क्या करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ज़रूर लेके आइए, उनके पैन कार्ड और ITR, प्लस में आपके पास सेविंग क्या है वो सब, प्लस में वर्क एक्सपीरियंस है तो उस सब की फोटोकॉपी, साथ साथ में अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट ये साथ लेके आइए। 27 तारीख को हम आ रहे हैं जी देहरादून, जो कि होटल का नाम है होटल सैफ्रॉन लीफ, जो कि पड़ता है GMS रोड पे। 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से मिल सकते हैं, मेरी टीम से मिल सकते हैं। जी प्रदीप जी थोड़ी जी डिटेल्स दस दो क्योंकि 2 मिनट बचे ने, जी, जी। बच्चों विद्यार्थियों को पता 27 तारीख दिन शनिवार अपना देहरादून में आ रहे हैं जी, होटल सैफ्रॉन लीफ GMS रोड पे 11 बजे से 4 बजे तक। इसके बाद 4 तारीख को जी हमारे नवासर द ग्रांड होटल एंड रिजॉर्ट, फिर 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 मई, 6, 7, 8 मई को वुसोंग यूनिवर्सिटी का मेरे ऑफिस में सेमिनार है। 6 तारीख को चंडीगढ़ ऑफिस में, 7 मई को जलंधर ऑफिस में और 8 मई को अंबाला ऑफिस में। इसके अलावा 11 तारीख दिन शनिवार रुद्रपुर आ रहे हैं होटल रुद्र कॉन्टिनेंटल, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप सब की बात होगी, प्लस IELTS-PT की बात होगी। 18 तारीख गंगानगर में आ रहे हैं जी, वेन्यू वेरी सुन बता दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। और 25 तारीख को खन्ना द डाउन टाउन रेस्टोरेंट, इसमें आ रहे हैं 11 बजे से 4 बजे तक। इसके अलावा 1 तारीख को जी सेमिनार है सर्फ एंड सर्फ एक कंट्री को लेके, दैट इज जर्मनी। अरोमा होटल सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, मोर देन 25 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज आपको वहाँ मिलेंगे जर्मनी के। इसके अलावा 8 तारीख को हम आ रहे हैं IELTS रियलिटी टेस्ट लेके 8 जून को, जो कि आपका रहेगा बठिंडा, और वेन्यू आपको वेरी सुन हम डिक्लेयर कर देंगे। प्रदीप जी कुछ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ढंग ਨਾਲ प्रेजेंट हों? श्योर सर, बहुत से स्टूडेंट बड़ी गलतियां करके आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ रहा है, कोई कुछ करके नहीं आ रहा है, कोई कुछ करके नहीं आ रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा, बहुत से बच्चे घूम रहे हैं जो अपनी फाइल लगा रहे हैं और बच्चे कैपेबल नहीं है, जैसे उनको 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, 6 E's की रिक्वायरमेंट है, 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड लेके बैठे हैं, 80% मार्क्स हैं, वो बैंड ले सकते हैं बट वो लेना नहीं चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते। इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जो मैथ में 40 नंबर लेके, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैं कल एक ऑफिस में बैठा था, एक सिस्टर आई अपने भाई को लेके, बोले जी इसके पास है ना फिर अपना क्या नाम है कॉमर्स है, साथ में इसके पास से मैथ है। मैं कहा एडिशनल था, बोली एडिशनल था। मैं कहा इसमें बिलो 50 रहेंगे, मैंने उस लड़के से पूछा, बोला भैया तकरीबन 40 नंबर आएंगे, मैं तेरा वीज़ा नहीं आएगा। तो मैंने उस सिस्टर से पूछा कि बेटा आपने क्यों दिलाया? सर मैंने इसलिए दिला दिया कि मैथ है, एडिशनल है, पास तो हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, कीप इन माइंड, आप एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर चलते तो उसको एडिशनल मत समझिए, उसमें आपने हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो मेजर सब्जेक्ट होता है। तो प्लीज़ उसमें अच्छे मार्क्स लेके आइए, और जो भी किसी सब्जेक्ट्स में आपके मेजर सब्जेक्ट्स में बिलो 50 आती है तो कीप इन माइंड इंप्रूवमेंट का ध्यान जरूर देना है। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਨਿਊ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।